So as a founder and CEO, you're often wearing like many hats. It is not just one thing that you have to do. कैसे manage करते हो फिर वो सब? Definition of a startup is that everyone should wear multiple hats. You should not have a defined role to everyone. When you're building something, multiple tasks करने पड़ेंगे. आप घड़ी नहीं देख सकते. As a CEO, you have to cater some leadership qualities, correct? So what are those few things कि आपने अपने टीम को वो सब चीज में discipline करके रखा है? First, obviously, customer is always first. Clients हो गए, so obviously they are first. ठीक है. Whenever there is an emergency, rather than कभी भी उनको need है, my number is always available. कोई hierarchy नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Innovation that has already happened or something is happening that is really exciting you. AI is very important feature आज की डेट में और हर टेक्नोलॉजी में AI का बहुत important role है और everybody is using or planning to use AI into the thingy and all. To summarize this, what is that one piece of advice you would want to give to our young entrepreneurs? So guys, welcome to another episode of Anything But Wrong, where we discuss all business innovations and entrepreneurship skills. Today we have the founder of Equate Me, Jatin Nanda, with us. Let's hear it directly from him. What is Equate Me and how did he start Equate Me? So Jatin. First of all, thank you very much for having me here. It's my pleasure to host you. And to start with, basically Equate Me is we connect luxury and premium brands with HNIs. Okay. And if you define HNIs, it's high net worth individuals and all. Correct. And that's a basically basic definition of Equate Me, what we do and all. Okay. Through technology, which we have. How do you connect these brands, these luxury brands to your HNIs? Basically, we have our white label app by the name of Equate Me only, which runs for all the social clubs. Okay. Across India and all. What are social clubs? It's normal for where any person takes a membership of a club for his recreational and day-to-day activities, which comprise of all the sports and recreational activities, which has got bar, which has got gym, then your restaurants to eat food and all that. But it's a members-only club. Okay. So you need a membership, which you pay a certain amount. Then along with that, you have to pay a subscription model also, which is monthly, quarterly and yearly. On Equate Me. No. That's I'm defining a social club. Oh, right. To become a member of a social club. So it's a member exclusive clubs, which is everywhere in India, abroad, everywhere. Correct. So in easier terms, we would call it as gymkhanas. You know those gymkhanas that are there in Mumbai. It's more Mumbai is gym. Yeah, Gymkhana is one brand, one name of a club and all that. So there are various NSCI, National Sports Club of India, New Friends Club. So every society, everywhere they have different social clubs. Correct. So you connect those clubs to your HNIs. No, I provide them a white label app for these clubs and all. And the members are HNIs because they are paying a huge amount for the memberships, about 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, varies upon. And some clubs that's cross 1 CR also. In some clubs, like in Bombay, it's NACI and all that. So we connect the members of these special clubs with luxury brands. Wow. Through our innovative technology and all. Wow, that's unique. I mean, I've not heard of this before, but I'm sure before you started this, like, did you see a gap in the market? What was your thinking? कि आपने क्यों चालू किया? Like, there was a gap in the market for this, correct? Why I started it, I would love to say that because I myself is a member of few of the clubs. Okay. And from childhood, we used to go for swimming and all that with dad and all. So what happens was that slowly, gradually, when I become a part of the management also, I was heading their entertainment department and all. So every club runs events. That's a major thingy where we have events and all in all the clubs and all. It comprises of big gatherings, minimum 500, 700, 1000, some clubs. Depends on the level of people, level of members they have, right? So all these luxury brands we used to approach and they used to approach us vice versa to market their products because these are their target audience. If somebody's paying 20 lakh rupees on an average to become a member, and so these people drive Mercedes, BMW, all these luxury cars, especially, and other segments, they are their target audience for real estate also. I'm just taking two names, real estate and your automobile, luxury cars and all. So they used to come to clubs for sponsorships and all, which we used to provide them. The club used to provide them with the physical space where they used to display their cars or they have a physical stall for their property or anything. And member used to come for events and all. And that's how they used to add. Their mindset was obviously lead generation is the major role into that thing. So they used to have the sponsorship over there and they used to interact with the members. They used to promote their brand over there and all that. And the
basic phenomena was to generate leads out of that activity, that events and all that. Correct. So what used to happen was, obviously I was heading the entertainment department, so I was dealing directly with these sponsors and all. So what used to happen, right, if somebody's placing their cars or their real estate over there, so members used to come for the events and all, and then the interaction level was very minimum, Right. few seconds. Like if some clubs have got limited spaces, so the cars used to they used to display their cars outside the club in the parking area. So member used to, they always used to be in hurry though, so they just used to come inside the club, and so that gap was there in generating leads and all. And obviously club used to charge big amounts, no offense, but yeah, obviously Yeah, we of used to course. take big amounts. Club used to take huge amounts from all these brands and all. So but the return of in ROI was not that much when somebody's doing their marketing activity and all that. So from there I got this idea that we should have an online presence along with the offline Correct. space with that. So we generated our own iconic events, which happens through our app only, Okay. where members comes to the club in huge gathering, 500, 600. Their table bookings, everything is done through the app itself, and from there we provide physical stall along with the online interactive banners on our app. So that particular event, if it lasts for 3 hours or 4 hours, so members constantly scrolling through those interactive banners, and the leads are generating over there, and all these leads goes to our Equate Me business app, which is the second model which we provide to all the sponsor and all. So they get leads in real time, and that is high On their quality, dashboard. good quality leads. Yeah, so their sales team contact them and all that with all that. So that's basically the basic concept of lead generation and everything through Equate Me technology and all. First thing, I really need to appreciate one thing, that the way you have found out your target audience, ki you want to cater to luxury brands. Yeah. Now you know those people are coming to clubs, so now you're tying up with those clubs. That is incredible. Yeah. That is like a very good way to find your target audience. Yeah. That is something new, and that is really nice. Okay, I really need to appreciate that firstly. Really appreciate it. Thank you very much. Secondly, now how do you monetize as a brand? Of course you charge clubs for those gatherings, but do you charge these individuals also to use your app? Is there a subscription model? We at this very moment we are not charging anything to club. Acha, you're charging the brands. We are charging the Right, brands, right. So the thing is, we are providing FOC free of cost this app to clubs, because obviously it's a white label concept. So we have developed the whole concept and everything is done so far. And the best part is that if we onboard a new club, within 24 hours we provide them a fully functional app of that particular club. Okay. Within 24 hours we can give them, because generally if they develop their own app, so it takes months and months of time. So our procedure is that within 24 hours we provide them a new club with their running app. Their members can download that thing and they can just execute on that particular app and all on their day-to-day activities and all that. So basically we provide a free of cost to the clubs and all, and we generate revenue through brands where they have to market that thing a certain amount. Nice. Which we also provide a certain amount to clubs also. So at the end of the day, this is a revenue generation model for clubs as well. They also feel incentivized. Yeah. Right. So how long has it been since you started Equate Me? We started, the prototype was during the COVID time. Okay. And it's about 2 years approximately. Yeah. Great. And what were you doing before this? I had my own marketing firm and all, and we used to obviously do the marketing and all for brands. That particular word. So But that was a physical, that was more of a Correct. face-to-face and all that thing, but nothing to do with technology and all. Is that brand still running? I would say rather than work, this is passion, Equate Me. So yeah, it requires more time and more effort. Yeah, so you are the CEO, and is it founded only by you? no, I have another co-founder Okay. who is taking care of the tech part. Okay. His name is Atish Patel, and he's from IIT Kanpur. Okay. So he's taking care of the tech and all completely, and I'm a hardcore salesperson. So Correct. I'm into sales. Right. I call myself as a sales professional. Yeah. Right. So as a founder and CEO, you're often wearing like many hats. Like, it is not just one thing that you have to do. Yeah. As the CEO and the founder, there are 100 things you need to do. Right. Luckily, you have a CTO, so tech में आपको उतना involved नहीं होना पड़ता. Right. But sales के अलावा, there are so many things आपको ध्यान देना पड़ता. आप कैसे manage करते हो फिर वो सब? I would rather say, rather than a CEO or anything, in a startup, the definition of a startup is that everyone
should wear multiple hats. Correct. I totally agree. You should not have a defined role to everyone, Right. right? And especially initial phase, when you're building something. So if you 100%. define that, okay, you are only responsible for marketing, or my tech co-founder is only responsible for, you have to develop tech, and I'm only responsible for then you can't make a brand, or you won't be able to succeed into this thing. I would really be honest into that thing, कि आपको multiple tasks करने पड़ेंगे. करना, I totally agree. And especially it's, आप घड़ी नहीं देख सकते. That is also very true. Yeah, it's not should be time specific कि यार 9 to 6 job है in a startup, तो ये कर भाई, and I will do this much only. It doesn't work work no, like it will never work like that, especially as a founder. So yeah, For an employee maybe it would work like that, but as a founder it would never work कि भाई मेरा तो आज का हो गया. नहीं. rather I would say कि in my hiring process मेरा पहला क्लॉज होता है कि जो मैं इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करता हूँ, एंड आई हायर ओनली दोज पीपल हु आर ओपन टू वेयर मल्टीपल हैट्स. अगर कोई ये बोल रहा है कि यार इफ आई एम हायरिंग समवन फॉर अ पर्टिकुलर रोल, तो अगर ही और शी इज ओनली स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर रोल, आई जनरली डोंट हायर देम. करेक्ट. क्योंकि यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसका फिर ऑब्वियसली वो चीज़ है नहीं. क्योंकि अभी जो टेक बढ़ाना है और जो उसको बिल्डअप करना है, you need people who are all in, who can go all in, obviously, and who can follow your vision. Correct. Right? Totally. And वो एक task follow करके नहीं हो पाएगा. I totally agree with this. I also have a team of 8 to 9 people, but Yeah. all of them are doing everything. Like my video editor is sometimes doing the work of a fashion designer. Yeah, exactly. He's doing packaging so that he can get the products sent. वो करना like, पड़ता है यार, वो करना पड़ता है. Definitely. You can incentivize them, obviously, and they should be. Yes. कि यार अगर somebody is taking care of each and everything, and rather than अगर आप उनको push करते हो कि यार you should do it, rather than if it's coming from inside them कि अगर उसको अंदर से है कि यार अगर ये task है और ये मैं कर सकता हूँ तो let me do it, तो ऐसे लोग को रखना चाहिए and you should appreciate them also. 100%. क्योंकि टू एंड फ्रो होना चाहिए 100%. कि आप ये नहीं कि अगर मेरा स्टार्टअप है तो मैं ही आई एम लीडिंग दैट थिंग और आई एम ओनली डीलिंग विद दैट थिंग. तो I totally agree. It works both ways. How big is your team right now? We have say about eight people at this very moment. Yeah. Right. So आप leadership qualities, जब as a CEO you have to cater some leadership qualities, correct? You have to show some leadership qualities. What are your key principles? कि I have to be like this or I have to do this to discipline my team, to keep my team in discipline basically. Those something to guide them basically. कि भाई ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए. व्हाट आर योर की रोल्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल एग्जाम्पल दूँ, मेरे ब्रांड में एक चीज़ फिक्स्ड है. आई हैव अ क्लोथिंग ब्रांड. I will never ever use any animal products as a fashion brand. Beat my wallet, beat my shoes, beat my jacket, nothing. No animal skin will ever come on my products. So that is one rule that me and my team, we thoroughly follow. None of them will ever come and show me ideas also. कि नहीं मतलब नहीं. तो what are those few things कि आपने अपने टीम को वो सब चीज़ में डिसिप्लिन करके रखा हुआ है कि नहीं भाई ये ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा. यार R is first, obviously कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट. ठीक है, जो भी है जिससे भी हम डील्स कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हो गए, हमारे क्लब्स के, बिकॉज दीज आर ऑनरी पोजीशंस, राइट? सो ऑब्वियसली दे आर फर्स्ट. ठीक है, एंड द टीम हैज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, रादर देन इंस्ट्रक्शंस आई वुड से, कि ऑब्वियसली वी ऑल अबाइड बाय दिस रूल कि they can call us anytime. Right. Whenever there is an emergency, rather than कभी भी उनको need है, my number is always available. Right. They can call me directly. कोई वो चीज़, कोई hierarchy नहीं है, कोई कुछ नहीं है. They can call, and they can call अगर उनका कोई text से है, so directly they can call Atish or anyone. So we totally believe into that thing कि अगर ये है तो सबको ये चीज़ पता है कि अगर आज वो चीज़ हो गया, सैटरडे हो गया या संडे हो गया, बट या वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल. यस, करेक्ट, बिकॉज इट इज योर ब्रांड. इफ यू आर नॉट अवेलेबल यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी अवेलेबल. एंड स्पेशली यार कंपटीशन आप कह लो या कुछ भी कह लो, अगर यू आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा ऑन द प्लेट, तो यू कांट सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड. आई टोटली एग्री. दे शुड आल्सो हैव कॉन्फिडेंस कि यार दीज पीपल आर अवेलेबल. अगर मेरे को कभी भी कुछ भी टेक का या कोई भी नीड हो रहा है, so I can call them anytime. Correct. So that's how we believe and we carry forward this that thing. Definitely makes a lot of sense also. So they have our mobile numbers, everything, and they generally call me also. Saturday हो गया, Sunday हो गया, they generally call me directly या किसी को भी वगैरह. So we are available all the time. So
Equate Me seems to be at the intersection of tech and luxury. ठीक है. Now luxury में innovation में आपका तो हाथ नहीं है क्योंकि वो तो उन brands का काम है innovate करना. But tech में आपका काम है innovate करना. What current innovation that has already happened or something is happening that is really exciting you? For example, AI. AI is Yeah. really exciting, and I Yeah. think that could probably be a huge part of your app Right, also right. in future, Yeah. targeting directly the audience that should be targeted. Like जिसको गाड़ी चाहिए उसको गाड़ी ही दिख रही है, गाड़ी जिसको दिख घर रही है. चाहिए उसको घर ही दिख रहा Yeah, है. yeah, for sure, for So sure. for what sure. are those? No, first tech of में all, changes? AI is there. Yeah, AI is very important feature आज की डेट में, और आई गेस कि हर टेक्नोलॉजी में AI का बहुत important role है, और everybody is planning, is using or planning to use AI into their thingy and all. तो obviously AI helps you. We are building AI वगैरह integrate वगैरह हो रहा है, already start हो चुका है, Okay. और काफ़ी एडवांस आगे लेवल भी हो हाँ गया है. वगैरह हो रहा है. Okay. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक वन थिंगी कि अगर किसी को इफ किसी ब्रांड को अपने कस्टमर का पूरा पर्सोना वगैरह करना है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, कि क्या दे प्रेफर स्पीड ओवर माइलेज या व्हाट एग्जैक्टली, आई एम जस्ट गिविंग अ वन Yeah, एग्जांपल है ना. सो एवरीथिंग पूरा का पूरा रीडिफाइंड एज पर देयर personas and everything is possible through Wow. AI and all that. Right. And to answer your second question, that आजकल क्या exciting चल रहा है, that we recently launched our business app also, Equate Me Business, for Okay. For the brands that for are the brands, and yeah, so that the new developments and innovations constantly coming up into that thing ki kya kya or we can provide to our brands and all. So Correct. that's one thing is going. आज है ना, आज के जितने भी ब्रांड्स है, बीट टेक ब्रांड्स, बीट प्रोडक्ट ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड हो, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है. कि जब तक आप स्टोरी टेल नहीं कर रहे हो अच्छे से, तब तक आपको वो सेल्स नहीं हो रहा है या आपको कस्टमर एक्वायर नहीं हो रहा है. लाइक यू नो, स्टोरी टेलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. आप लोग स्टोरी टेलिंग किस फॉर्म में करते हो? दोनों जगह पे. एक ब्रांड्स को भी, आई डोंट थिंक सो आपको ब्रांड्स को ज़्यादा स्टोरी टेलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. वो लोग को डेटा दिखा देते तो इट वर्क्स रियली वेल. बट हाउ डू यू पुल दोस कस्टमर्स कि एक इवेंट में 500 लोग को बैठाना है, 1000 लोग को बैठाना है, वो लोग क्यों आएंगे 1000 लोग आपके वहाँ पे? मतलब वो कैसे आप कर रहे हो? पहली बात है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन कर रहा है कि वी हैव डेवलप दिस आइकॉनिक इवेंट्स जो हम करते हैं अपने एग्जीक्यूट, वो पूरा का पूरा फ्रॉम स्क्रैच टिल द बॉटम एवरीथिंग वी डू इट, पूरा का पूरा वी हैव डेवलप्ड इट, और वो हम करते हैं. एंड जब हमने इसको स्टार्ट करा था, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाज अ की पैरामीटर इनटू दैट थिंग कि ऐप के ऊपर होना है पूरा का पूरा इवेंट, एंड घर से नहीं कर सकते, तो मेंबर्स विल कम टू द क्लब, नेटवर्किंग भी हो रही है, उनका आपस में गैदरिंग वगैरह से इंटरेक्शंस हो रहा है, एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू हैव ब्रांड्स प्रेजेंस उनको वो प्रोवाइड करने के लिए. सो उसके अंदर हमारा पहला वो चीज़ था नोशन कि टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़्यादातर टेक savvy लोग या यंगस्टर्स लोग विल बी मोर अट्रैक्टिव कि समथिंग न्यू हैज़ कम अप इन द मार्केट, लेट्स एक्सपीरियंस दिस, एक्सप्लोर दिस न्यू कॉन्सेप्ट एंड ऑल. बट नमन, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दैट कि जब we launched and we introduced that this is the concept we are coming up and all that, you know, senior people, elderly and all, they were more keen, they were more enthused and all. They used to come to me कि यार पहले हमारे को डाउनलोड करवा दे, हमारे को बता दे कि कैसे इसको वो करना है, so that कि उनको एक वो है कि यार हम पीछे ना रह जाएं, we want to experience the same thing. Plus I think they are more क्या बोलते हैं, active in those clubs also. Yeah, Like, नहीं, there all kind of people come to club. Depends on your activities on all, sports, recreational वगैरह, सब कुछ के लिए it's a mixed kind of gathering which we see in social clubs and all. But timing different हो सकता है कि obviously जो retired बंदे हैं वो आफ्टरनून में भी आ जाते हैं and all that. Youngsters come after their work and all, socialize अपने friends के साथ, having few drinks together and all, you know. हाँ, obviously वो आपको, हाँ, वो चीज़ आपको वो करना पड़ता है वगैरह. And yeah, so that, और मेरे हिसाब से ये कल्चर बहुत फैसिनेटिंग भी है, जो अगर कोई बंदा क्लब का मेंबर है तो ही कैन रेजोनेट विद मी ऑन दिस थिंग कि कोविड के अंदर ये हमारा लैकिंग भी बहुत हुआ है. यू नो कि होता क्या है कि आज की डेट में यू नो स्ट्रेस काफ़ी है वर्क के, पर्सनल लाइफ वगैरह के अंदर. सो सोशल क्लब्स का इम्पैक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वर्किंग या इफ़ समबडी इज़ वर्किंग, वो अपना शाम को आएगा, तो हर बंदे को वेंट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए. तो वो हमारा क्या होता था कि हम अपने क्लब्स जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल है, हमने स्पोर्ट्स खेला,
मैं बिलियर्ड्स खेलता हूँ तो मैंने अपने स्नूकर बिलियर्ड्स खेला अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हमारे 10 एक बंदों का, देन वी गो टू बार, वी हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स, वो हो गया। तो आपका पूरा का पूरा जो आपका पूरा दिन का आपका बर्न हुआ है, ठीक है, वो आप एक तरह से वेंट आउट होता है, यू गेट रिचार्ज करेक्ट अगले दिन वगैरह के लिए। Correct. तो वो चीज़ कोविड ने काफ़ी इम्पैक्ट करा था, जब सब कुछ बंद हो गया था, आपको स्ट्रेस इतना हो रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, सोशलाइजिंग खत्म होगी पूरी की पूरी। सो ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है मेरे ख्याल से सोशल क्लब्स जिसके अंदर हमारा पार्ट वगैरह। सो वो गैदरिंग्स वगैरह उसके अंदर मिक्स वगैरह होती हैं कि एल्डरलीज के अपने ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, उनके अपने वो हैं, दे क्या क्या स्पोर्ट्स क्या क्या वो करते हैं, ग्रुप्स वगैरह उनके बने हुए हैं। यंगस्टर्स के अपने फ्रेंड सर्कल्स, डिपेंड्स ऑन योर एज ब्रैकेट एंड योर फ्रेंड सर्कल, आपका वो सारा बना हुआ है। नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अभी चलो यंगस्टर्स एंड जो जो आपके ये क्लाइंट्स हैं, आपको उनके साथ ज़्यादा रिलेशन मेंटेन नहीं करना पड़ता, व्हाट आई एम अज्यूमिंग, बट आपको आपके ब्रांड्स एंड आपके क्लब्स के साथ तो लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट इवेंट टू इवेंट बेस्ड नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तो आप कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका आपके क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म एक इंश्योर एक्टिविटी चालू है, लाइक लॉयल्टी वाइज ऑल्सो, कि what if somebody else comes and provides the same service at a little lesser cost or providing more to the club? What if they remove you? And you have to have that personal relation with the club, because you are the first mover in this. There will be 10 more after you who will try to do the same thing. तो तब आपको वो भी तो एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भाई 10 आने दो, आप मेरे साथ ही रहोगे। आप कैसे करते हो? जैसे आई जस्ट मेंशन कि जो एक आपका पर्सनल टच होता है किसी भी बंदे का, वो हर एक बंदे का इंडिविजुअल होता है, व्हाट आई बिलीव, दैट्स माय नोशन टुवर्ड्स दैट थिंग। एंड व्हेन यू इंटरेक्ट टुवर्ड्स दैट, फॉर एग्जांपल आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपकी मेरी एक इंटरेक्शन हो रही है, मैं आपके साथ 2 घंटे बैठ गया, 3 घंटे बैठ गया, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। सो ये हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सोना होता है। व्हेन यू कनेक्ट टू समवन, ठीक है, आप एक obviously that person remembers you, वो बाहर जाके आपकी बात करता है, यार आई मेट जतिन टुडे, आई मेट नामन टुडे, ही इज डूइंग दिस थिंग, या पॉडकास्ट कर रहा है, ये इसका टेक का स्टार्टअप वगैरह, देन स्लोली ग्रेजुअली यू बिल्ड अ रिलेशन। यस, और वो इंक्रीज होता है रिलेशन, जब आप उस बंदे से मिलते हो, आपका एक इम्पैक्ट रहता है उसके माइंड में, उसकी एक लाइफ में, ठीक है, आप जितनी देर उससे मिल रहे हो। सो आई बिलीव कि वो इंक्रीज होता रहता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो एक रिलेशन डिस्ट्रॉय होता है या कुछ होता है। इन माई सिनेरियो जो पैसा है, ठीक है, I totally accept this thing that money is very important in running a business. I'm running a business. Correct. It's not a charity. I'm running a business. Correct. Money is a very important parameter into that thing, in everything. Correct. But simultaneously, money से ज़्यादा एक relation important रखता है, जो मैं believe करता हूँ. When I meet someone, these are जो clubs की अगर हम बात करें, these are honorary members who gets elected by elections. जैसे हमारे normal elections होती हैं, बीजेपी स्टेट, ऐसे ही इनके भी elections होते हैं, सेम लेवल ऑफ एनर्जी होती है, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स जाते हैं, एंड दे आर नॉट पेड फॉर दीज काइंड ऑफ पोजिशंस। इनको कोई सैलरीज नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, इट्स ऑनरी पोजिशंस व्हाट दे एक्वायर टू रन क्लब्स, ठीक है। तो इनसे जब इंट्रैक्शंस होती हैं, एंड ऑन दैट लेवल यू मीट, यू ग्रीट देम, आप डिनर्स पे इनवाइट होते हो, आप उनके इवेंट्स में होते हो वगैरह, जितना टाइम, तो वो आपका एक रिलेशन बिल्डअप होता रहता है। सो टू पेनिट्रेट दैट रिलेशन, इफ अ समवन थर्ड पार्टी कोई भी आता है उसके ऊपर वगैरह, आई एम नॉट शोइंग कि मेरा कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है 50 साल का वगैरह, यानी आज की डेट में कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है। आई टोटली बिलीव दैट थिंग, बट मेरी वो जो चीज़ है कि आई बिलीव इन इनोवेशन, मैं उसको इनोवेट कर रहा हूँ, मैं एक नया टेक, एक नया फीचर उसको लेके आ रहा हूँ, करते रहोगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं वो एक लेवल पीछे ही रहेंगे। यार कोई आगे भी जा सकता है, आई टोटली बिलीव इसके अंदर, अगर कोई आगे चला गया तो मैं अपनी स्पीड पे अपना वो चीज़ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मेरा कोई ना कोई ऐसा फीचर मैं निकालूंगा, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइजिंग, करेक्ट, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आई एम टोटली ओपन फॉर दैट, अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, इट्स गुड फॉर देम, इट्स ओपन मार्केट यार, काइंड ऑफ दैट थिंग। मैंने भी पहले एक फील्ड देखी, उसके ऊपर इनोवेट करा, उसका एक सोल्यूशन लॉन्च करा, अगर कोई मेरे से बेटर उसको लॉन्च करेगा, ऑब्वियसली ही विल बी मोस्ट वेलकम, आई वुड रादर से। एंड it's a race my friend, yeah, so everybody is running towards that कि, और आई थिंक अगर आप ये बिलीव करते हो कि यार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मेरे को कोई बीट नहीं कर पाएगा, तो that's wrong, I guess. Totally. And it is a race with
नो फिनिश लाइन. नो फिनिश लाइन. आप कब आप फर्स्ट आई नहीं है ही नहीं इसके अंदर कभी कोई. भी आपके ऊपर कोई चला गया तो हो गया. देयर इज नो फिनिश लाइन टू दिस एंड यू रेस. शुड बी ओपन फॉर दैट. ठीक है, यू जस्ट हैव टू स्टे अहेड. पूरे टाइम आपको लीड में रहना है, बस फर्स्ट नहीं होना है. आई थिंक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन. करेक्ट. हेल्दी. Healthy competition is always good. Totally agree. Jatin, you've been an entrepreneur for quite some time and it clearly sees also in your talks, okay? How do you stay inspired all the time and continue pushing your boundaries? कि यार stagnant नहीं होना है और क्या बोलते हैं comfortable नहीं होना है. इतना कर लिया बस नहीं और Yeah bro, I believe startup में आप कांस्टेंट हो ही नहीं सकते. नहीं हो आप सकते. कंफर्टेबल हो ही नहीं नहीं हो सकते. सकते. जिस दिन आप ये हो गए यू आर फिनिश. Correct, but that हाँ, is no, for the I new get it. ones. Yeah. That is for the new हाँ, ones जिन्होंने पहली बार काम किया. हाँ. आज मेरे को समझो 1 साल हो गया. Probably 10th year पे लगेगा बस भाई इतना तो और इनोवेट और नहीं हो रहा है. स्टैग्नेंट हो सकता है. हाँ, हो सकता बंद है. नहीं करना है. हाँ. इनोवेट और नहीं हो रहा या अपने आप क्रिएटिविटी डेड हो गई. वो खुद को अभी जो मैं कितना खुद को पुश कर रहा हूँ probably 10 साल बाद मैं खुद को इतना पुश नहीं कर रहा हूँ. मे बी कर पाओगे. हाउ डू यू कीप पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं भाई हमको रुकना ही नहीं है. आई थिंक यू नो वन शुड वर्क ऑन दैट आइडिया जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. राइट. दैट्स अ की इम्पॉर्टेंट थिंग. राइट. अगर कोई आइडिया आपके बहुत क्लोज है हार्ट के और यू रियली वांट टू डू समथिंग इनटू दैट थिंग, आपको वो चीज़ करना चाहिए. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप रादर अ स्टार्टअप आप कुछ भी कह लो, इट्स नॉट अ ईजी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. और एक इसका टाइम फ्रेम जो है, ठीक है, इट्स नॉट लिमिटेड टू कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, एफर्ट कर दिया, वो कर दिया, आई विल अचीव माई गोल्स एंड ऑल एंड देन आई विल मिंटिंग मनी एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ नहीं है यार. करेक्ट. इट्स लॉन्ग आवर्स, वे टू गो, बहुत साल चाहिए वगैरह और कॉन्स्टेंटली चाहिए. आप करते रहोगे. इट्स अ साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल, आई वुड रादर से. सो परसिवरेंस इज वन थिंग विच इज द की इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन अ स्टार्टअप. राइट. कि आपको वो नोशन और परसिवरेंस होना चाहिए. राइट. नॉट गिविंग अप एटीट्यूड. क्योंकि होते हैं फेलियर्स आएंगे. आप आज वर्किंग करते हो, हम करते हैं कोई एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक नए फीचर के ऊपर, पूरा एनर्जी लेवल होता है, सब कुछ होता है. जबकि आई बिलीव व्हाट वी डू इट कि हम अपने क्लाइंट्स, क्लब के मेंबर्स या क्लाइंट से पहले डिस्कस करते हैं कि वी आर कमिंग अप. हम एक ऑनलाइन ही सर्वे रन करते हैं. क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से वी डू एवरीथिंग. जो बाय बुक आप कर सकते हो वी डू दैट. ठीक है ना, जो है सब कुछ वगैरह, आप पहले कस्टमर्स के पास जाओ, प्रोटोटाइप बनाओ, एवरीथिंग वी डू इट. ठीक है. बट स्टिल देयर आर टाइम्स कि वो एक्सेप्ट नहीं होता. आप जितना लेवल हाई होता है आपका, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, काइंड ऑफ दैट थिंग, यू नो. बट फेलियर्स होते हैं. सो आप गिरते हो, आप दोबारा उठते हो. परसिवरेंस, दैट्स अ रीजन आई सेड कि इफ द आइडिया इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट थिंग. Talking about failures, did you come across any as a heartbreaking failure during Equate Me? And if you did also, how did you tackle that? And one more question to this. What advice would you like to give younger you before starting Equate Me? There is one thing, इसका पूरा का पूरा combined एक answer है, which I would love to share. कि जब मेरा ये first था ब्रेक थ्रू कि आई हैव टू बिल्ड समथिंग ऑन दिस थिंग, दिस आइडिया एंड ऑल दैट. तो क्योंकि आई मेंशन कि मैं खुद ही मेंबर था क्लब्स वगैरह का, तो ऑब्वियसली आई वाज क्लोज टू द मैनेजमेंट ऑल्सो, आई वाज लीडिंग द एंटरटेनमेंट टीम ऑल्सो. तो मेरे को पूरा का पूरा वो था. तो मेरा जो फर्स्ट वो था नोशन वगैरह कि यू नो आई हैव टू बिल्ड. और एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में ऑब्वियसली जो मार्केटिंग और जो सोशल मीडिया पे हम कम अक्रॉस करते हैं, ठीक है, दिस XYZ स्टार्टअप हैज़ रेज्ड 20 million, 30 million, इसकी वैल्यूएशन 4 billion हो गई है, 1 billion हो गई है. You convert into INR and all that. So it's very fascinating, Very right? fascinating, especially after Shark Tank. Very honest. Shark Tank has actually like got people का अंदर का entrepreneurship का वो कीड़ा होता है ना. Exactly. So जस्ट इमेजिन, आप सुबह उठते हो, पहली चीज हर बंदा करता है अपना मोबाइल देखता है, नोटिफिकेशन देखता है. Correct. तो आपने जो भी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करे हैं, पहली नोटिफिकेशन आती है XYZ स्टार्टअप हैज रेज्ड 30 million इन सीरीज ए, 50 million ये हो गया. तो आपको वो बहुत फैसिनेटिंग होगा, यार ये ऐसा कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर जो मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर पा रहा, काइंड ऑफ दैट थिंग. सो इट गेट्स यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग टू स्टार्ट समथिंग वगैरह. तो
जब स्टार्टिंग हमने करी थी, ऑब्वियसली मैंने करी थी, तो मेरा यही नोशन था कि यार आई हैव क्लाइंट्स मेरे पास हैं, आइडिया मेरे पास है, एक्सपीरियंस मेरे पास है, आई नो दीज पीपल इन एंड आउट, अंकल आंटी शुरू से ही हो रहे हैं क्योंकि क्लब मेंबर्स थे तो बचपन से जा रहे हैं वगैरह, तो वो पूरा था। तो मेरा पहला था कि यार इक्विटी को पकड़ना है, 100% इक्विटी अपने पास होनी चाहिए। तो मैं हायर करूँगा टेक के बंदे, उनसे डेवलप करवाऊँगा ऐप वगैरह, और जो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सही फर्स्ट बात, फेज है, yes. और उसको लॉन्च करूँगा, अंकल आंटी वगैरह लॉन्च करके वगैरह विल स्टार्ट दैट थिंग कि आई डोंट नीड एनी को फाउंडर फॉर दिस थिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी बन जाएगी, बंदों को सैलरी पे रखूँगा और टेक्नोलॉजी बन जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट नोशन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट स्लोली ग्रेजुअली जब इसके अंदर आए एंटरप्रेन्योरशिप का रियल मतलब जाना, what exactly it is, how important is to the growth stage, everything वगैरह, then you realize कि यार equity is one thing, you know, कि ठीक है वैल्यूएशन है, सब कुछ है, एक गेम है, बट वो एक पैरेलल चलती है। रियल फ्रूट इज जो आप बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करते रहो, आपकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। और अगर ये चीज पे आप वर्क नहीं करोगे तो वो चीज वर्क नहीं उसका वो होगी। कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, कस्टमर मांग ही नहीं रहे आपका प्रोडक्ट, कोई यूज ही नहीं कर रहा आपका product, तो 100% ऑफ फ्रूट आप रख के करोगे क्या यार? उसकी वैल्यूएशन क्या है? जीरो। वैल्यूएशन तब है जब कस्टमर्स आर आस्किंग फॉर योर प्रोडक्ट, Correct. आप उसको यूज करवाने दे रहे हो, आप वो चीज कर रहे हो। सो दैट्स वन थिंग वे उसको स्टार्ट मैंने वैसे ही करा है। मैंने 2 बंदे हायर करे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी बनवाई है, उसको लॉन्च करा है वगैरह, बट या बट उसका यू आर होपिंग टू गेट अ प्री सीड। नहीं अच्छा, नहीं, वो शुरू से था कि Bootstrap आप ही रखना। बूटस्ट्रैप करूंगा, Okay. स्टार्टिंग वगैरह का फेज Okay. वगैरह, लेट द पहला जो इनिशियल फेज है इंटरेक्शन वगैरह आने दूंगा, सब कुछ वगैरह करूंगा, लेट आई शुड टेस्ट द वाटर्स फर्स्ट, Correct. और फिर उसके बाद किसी का पैसा रेज वगैरह करूंगा। यार Okay. आई बी ऑनेस्ट, उस वक्त इतनी वो भी चीज़ नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग, कि वही फैसिनेशन था, वो था कि इसको स्टार्ट करना है। तो उस वक्त कुछ ये नहीं था कि वीसीज क्या हैं, तब स्टेज, रेजिंग का हाँ उतना आइडिया वो नहीं था। रेजिंग का नहीं था, आई बी Okay. वेरी ऑनेस्ट वगैरह। Okay. सो उस वक्त मैंने उनको हायर करा, मैंने डेवलप करा प्रोडक्ट वगैरह, बट देन आई रियलाइज कि यार इसको इनोवेट करना ही करना है, इसको हर डे आपको कुछ ना कुछ वो चीज़ करनी है। फ्रॉम देयर गॉट दिस आइडिया, एंड स्लोली ग्रेजुअली व्हेन यू गेट नॉलेज इनटू दैट थिंग, देन you realize, no, if you're starting a tech startup, you need a CTO inside. You know, equity is one part. You don't have to hold the equity. Equity is important, but आप उसको hold करके अपना पूरा startup run नहीं कर सकते. So that was a learning which I learned it, Nice. and won't say that I learned it hard way, but yeah, I learned it at अच्छे टाइम पे वगैरह. Then I approached my tech startup, my CTO and all that, and इक्वल 50% इक्विटी उसको दी वगैरह. उस वक्त भी जब हमें नेगोशिएशंस वगैरह, जब पेपर वर्क्स वगैरह कर रहे थे, तो वो था कि मतलब उसको इक्विटी कितनी देनी है, इफ़ यू, उसके लिए भी काफ़ी मैंने रिसर्च वगैरह करी थी. इफ़ यू हायर अ टेक स्टार्टअप और आपके पास ये अगर एडवांटेजेस हैं, इनिशियल फर्स्ट कस्टमर्स आपके पास हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कितनी चुभता उसको है. कितनी उसको देनी चाहिए वगैरह. बट आई थिंक वो फेयर है. फेयर आ गया, हाँ, आइडिया और उसके ऊपर कोई वो चीज़ नहीं है. इफ़ यू लुक लॉन्गर पिक्चर, तो इक्विटी डजंट मैटर. Correct. And if you see the longer picture, a co-founder would put much more efforts than an employee in terms of innovation also. हाँ, आई टोटली एग्री. If you have the right co-founder, of यार course. इट्स अ बेसिक स्टेटमेंट, उसका कितना स्किन है गेम में, Exactly. जो हर एक का है, ठीक है ना. Exactly. अगर वो आपका एम्प्लॉय भी है, आई वुड रीडिफाइन दिस क्वेश्चन, कि अगर वो आपका एम्प्लॉय है, अगर उसका ESOPs अच्छा है, स्किन है गेम हाँ, में, तो वो करेगा तब वो आपका, करेगा. सही बात है. अगर उसका सिर्फ सैलरी बेस है कि यार मेरा 9 to 6 मैंने अपने इतनी फिक्स सैलरी तो वो आनी उतना है, ही काम करेगा फिर. सही बात है. वो अपना क्यों उसके बाद क्यों दिमाग क्यों वो लगाएगा. करेगा. सही बात अगर है. किसी That is को fair for him also. Him or एग्जैक्टली, her अगर also. किसी को वो मिल रहा है, किक मिल रही है, वो उसका है स्किन गेम में, ही इज मोटिवेटेड टूवर्ड्स दैट थिंग कि यार इफ दिस थिंग gets bigger, so obviously I'm set for life. Yes, So obviously yes. he will put his Definitely. 100%, I will 200% into that thing. फिर Definitely. उसके लिए भी सेम फोकस होएगा, सेम सब कुछ होएगा, यार इसको बनाना है. सही बात है. बाकी सब कुछ बाद में. will treat as your own baby ना. So it Nice. totally, I would say it totally depends on the founders कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट और वो सब कुछ करते हैं. लकीली जितने भी मैंने अपने अभी तक पॉडकास्ट किए ना, ऑल द फाउंडर्स हैव सेड दिस वन थिंग, यू नीड टू बी रियली नाइस टू योर टीम, और लाइक बी नाइस, सपोर्ट देम,
इंसेंटिवाइज करो, चीज़ों को करो, बस अच्छा काम करो, टीम के साथ, टीम का सुनो। ये For चीज़ sure. मैंने हर पॉडकास्ट में सुना है अपने, हर एक गेस्ट ने ये चीज़ बोली For ही sure. बोली है। एंड मैं तो बिलीव करता ही हूँ ये चीज़, खुद भी मैं बिलीव करता हूँ कि मैं मेरा कोर टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। For दे आर sure. लाइक फैमिली टू मी। बाकी तो आते जाते रहते और हैं, बट यार कोर टीम मेरी फैमिली इनिशियल है। टीम, कोर टीम, एज यू आर सेइंग, उनके साथ तुम्हारी जो जेल होता है, जो तुम्हारा एक बनता है, कनेक्ट बनता है, वो भी बहुत डिफरेंड बनता बहुत है, डिफरेंट बहुत बनता है, डिफरेंट बनता सही है, बात है। क्योंकि उनके साथ ही तुम बैठ के डिस्कशंस कर रहे हो, उनके साथ ही तुम इनोवेशंस टेस्ट कर रहे हो, R&Ds कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हो Correct. वगैरह। तो वो ही आगे जाके अगर उनको दिख रहा है कि यार आगे जाके ये चीज़ ग्रो करेगी, सो वी विल बी हेडिंग आवर ओन टीम, Yes. हमारे नीचे टीम होएगी, वी Yes. यू गिव देम दैट Yes. काइंड ऑफ Vision. आगे के दिखाना, Yes. विजन वगैरह। वो ऑब्वियसली फाउंडर्स का काम है ना कि यार Yes. अगर ऑब्वियसली मैंने तेरे को हायर करा है एंड आप स्टेज पे हो, तो आप मेरे साथ जानते हो, आप सब कुछ मेरे साथ ही करा हुआ है आपने, तो आगे टीम भी आप ही हेड करोगे ना सही बात, उसकी, सही, ऑफ अपने कोर्स, डिपार्टमेंट्स आप हेड करोगे, ऑफ कोर्स टोटली। एंड वो फाउंडर्स का ही काम है वो समझाना, फाउंडर्स का काम है। और वो एक्चुअली खाली बोलने के लिए झूठे सपने नहीं दिखाना, लाइक टू मीन व्हाट दे आर सेइंग आल्सो। Obviously. क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब एकदम अर्ली स्टेज में ना, तब तो मैं आपको भी, मैं भी प्रॉमिस कर देता हूँ, अरे भाई 10% तू रख लियो, काम अच्छे से कर। जब कंपनी 100 करोड़ की हो गई, तब तब 10% नो चांस, 1% यूपी। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो, वो यू हैव टू। वैल्यूएशन वो चीज़ होती, बट एक कनेक्ट अलग, आई वुड से एक कनेक्ट इनिशियल कोर टीम का अलग बनता है, सही जो बात आपने है। नाइट्स वो करे हैं, आपने सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करा है, कैसे उन्होंने फेलियर्स में भी आपके साथ हैं, कोई चीज़ नहीं चली तो भी वो आपके साथ हैं। सही बात है। वो देख रहे हैं कि अगर फाउंडर ने भी कोई गलती कर दी, तो उनका ओवरऑल बिलीफ फाउंडर पे है ही, वो एक गलती से उनका भी वो हट नहीं रहा है कि भाई यू नो, वो होना, वो एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड। एंड विद और यार न्यू पीपल यू कैन नॉट बिल्ड अ लॉन्ग टर्म और ब्रांड, यू एक नीड योर कोर टीम। फॉर श्योर, और एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ आई गेस, ठीक है ना, डे टू डे एक्टिविटी है, गिरने से नहीं डरना चाहिए, दैट्स माई टोटली बिलीव, एंड दैट Totally. विल कीप यू गोइंग कि I totally agree with this. I've myself had a failed startup. And ठीक है, then कोई I बात started my clothing brand right after it, and that became much better than what I was नहीं, doing टेक इट एज अ before. लर्निंग ना, आप Yes, सीख yes, ही वो एक जाओ साल मैंने आगे। सीखा, एक साल मैंने सीख लिया। I take it as that 1 year of a failed startup, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है NFT space. जब आप फेलियर से डर जाते हाँ, हो, फिर तो खत्म हो जाता मेरा, तो अभी गिव अप आगे, कर देते हो। हाँ, दिन तो मेरा तो पूरा लाइफ अभी बाकी है। So like looking ahead, where do you see Equate Me in the next 5 years? In terms of revenue also, हाँ, and in terms of positioning yourself also. oh my god, 5 years, next 5 years, that's Yes. a tough question to answer. But because it is a tech brand, your हाँ next year won't matter so much. तो मेरे को 5 years बाद का जानना है, कंपाउंड होके आप कहाँ देख रहे हो खुद को? यार अभी तक इतना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने ये नहीं सोचा कि 5 साल में क्या होएगा या 4 साल में क्या होगा या 7 साल में, बट हाँ एक एम, एक गोल के ऊपर डेफिनेटली वर्क चल रहा है कि आने वाले टाइम में, आई वुड नॉट से How हाउ much time? मेनी, हाँ कितना साल, कैन बी 3 years, क्योंकि ऑनेस्टली टेक जैसे ग्रो करता है, वी ऑल नो दैट। सो आने वाले टाइम में जो भी लग्जरी ब्रांड, स्पेशली रियल एस्टेट और आपका ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल दैट जो भी होएगा, सो I think Equate Me will definitely play a huge role. Ki they should go through Equate Me, the channel, the launch and everything will go through Equate Me. If not 100%, then definitely 70+%. Okay, nice. आप मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा डाउट है। Cars and real estate are a heavy product, heavy priced product also. It's not so easy to buy. But luxury segment में there are products that are easier to buy. For example, a T-shirt by a very big brand, you know. Why are you guys not targeting those brands also? There could be one reason कि those brands cannot afford the fee you pay, No. and those BMW and those real estate people can afford the fee you ask for. So that is one reason. So नहीं, I totally agree with you. In fact, हमारा एक इवेंट, obviously we have a constantly association with the luxury brand fashion के अंदर ऑफमिंट के साथ, Yeah. ऑफमिंट के साथ हमने इवेंट्स वगैरह प्लान आउट कर रहे हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट हमारे इवेंट्स वगैरह में चल रही हैं नाउ। Okay. लग्जरी ब्रांड्स के साथ आया हुआ है वगैरह हमारा, Correct. सो दैट सेगमेंट इज देयर, जो उनका डिफाइंड है। ऑफमिंट लक्स हो गया लग्जरी उनका, बाकी जो ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए जिनके भी टारगेट ऑडियंस HNIs वगैरह हैं, वी आर हैविंग अ टाई अप्स एंड दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट थिंग। Nice. Right. क्योंकि रादर देन, आई वुड बिलीव कि ब्रांडिंग इज वन पैरामीटर, जो भी एक
फेस के बाद ऑब्वियसली दे डोंट नीड ब्रांडिंग, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ऑलरेडी चल रही होती है न्यूज़पेपर्स में, फिजिकल होर्डिंग्स वगैरह उनकी चल रही होती है. लीड जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. So there the connect comes कि if you can provide them quality leads, that's where. So देखो एक चीज आप मेरे को बताओ, आज के टाइम पे जितने भी न्यू स्टार्टअप्स है इन द टेक स्पेस और द सर्विस प्रोवाइडिंग स्पेस, ठीक है, मार्केटिंग स्पेस पर्टिकुलरली, आपने जो किया है दैट इज वेरी न्यू. आज कोई भी एक नया स्टार्टअप अगर आ रहा है मार्केटिंग के लिए, वो लोग क्या करते हैं, ब्रांड को लेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ेंगे, वही मार्केट करेंगे, करा देंगे. अब वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया, वो हो गया, मोनोटोनस हो गया, ब्रांड्स को उसमें ROI भी नहीं मिल रहा है. फर्स्टली आपने ये जो पूरा एक न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, न्यू वे ऑफ कनेक्टिंग ब्रांड्स टू द कस्टमर्स चालू किया है. व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट लाइक ROI वाइज, इज इट बेटर देन द ट्रेडिशनल मीन्स? यार ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जो अभी चल रहा है उसमें ब्लड शेड बहुत ज़्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लीड्स कन्वर्जन्स वगैरह एक ही वो चल रहा है. करेक्ट. आई बी यू कैन रेजोनेट विद मी कि एक ही कॉन्सेप्ट है लीड जनरेशन का, आप और वो कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है. करेक्ट. जैसे जैसे कंपटीशन आपको बढ़ता है, आपको भी लीड चाहिए, सेकंड पर्सन को भी चाहिए, थर्ड को भी चाहिए, और वही लीड चाहिए. तो उस लीड की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी. सप्लाई एंड डिमांड के वो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई लिमिटेड है. आपने एक टी शर्ट खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बायर, आपने एक टी शर्ट खरीदनी है, बेचने वाले 5,000 है. अब आपकी एक लीड है, उस लीड की वैल्यू डिफाइन होती है कि 5,000 बंदों को आपकी वो लीड चाहिए. तो आपकी ऑब्वियसली उस जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लीड. सो ऑब्वियसली सैचुरेशन विल बी देयर, और काफ़ी हद तक, और जो रन कर रही हैं ये चीज़, जो ऑनलाइन वगैरह रन करते हैं, दे नो what exactly they are facing the problem and all. Right, definitely. You have a fashion, I guess you are a better person to answer this thing. Yeah, so like we don't go to agencies now because we see that it is not deriving us any results. Exactly. हम वो क्रिएटर के साथ कोलैब्स करना बंद कर दिए है, पेड कोलैब्स, बिकॉज हमको उससे एक सेल भी नहीं आ रही है. For sure. लाइक एक सेल तो आनी चाहिए, कुछ तो आना चाहिए सेल्स. कुछ सेल्स नहीं आ रही है उससे. तो हमने तो वो एजेंसीज के साथ काम करना बंद कर दिया. हमने कभी एजेंसी के साथ काम किया ही नहीं था, खुद से कर रहे थे, बट हम वो पाथ अब नहीं ले रहे पर्सनली. प्लस मैंने एक और चीज नोटिस क्या किया है, एक ही क्रिएटर 10 एजेंसी के साथ टाइड अप है. अब वो 10 एजेंसी में से जिसको भी वो ब्रांड मिला, वो उसी क्रिएटर के पास जाके वही टाइप का कंटेंट बन रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है. खाली मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि क्रिएटर कोलैबोरेशंस एंड ऑल आर जस्ट ब्रांड अवेयरनेस कोलैबोरेशंस. इट इज़ अ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, नॉट अ सेल्स कैंपेन. ब्रांड अवेयरनेस हो गया कि हाँ चलो XYZ पर्सन ने आपका प्रोडक्ट्स पहना है, आपका प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इट. कोई उसके वजह से कुछ खरीदता नहीं है. No offense to these agencies and all, but that's the reason I mentioned that we came into picture. कि leads, quality leads are the most important thing. जो आप ऑनलाइन कैंपेन्स वगैरह करते हो, as you just mentioned कि ब्रांड अवेयरनेस उसमें होता है आपका, बट वो जो आपने फिजिकल स्टॉल्स जैसे होते हैं, ठीक है, वो बंदे ने स्क्रॉल करा, खुद ही बैठती आप स्क्रॉलिंग करी जा रहे हो. और आज की डेट में जो प्रोटोटाइप्स और जो चल रही हैं कि अगर आपने एक कीवर्ड सर्च करा है तो उसी की एड्स मेरे को मल्टीपल ब्रांड्स की बार बार दिखती हैं. एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डिसाइड कि मेरे को किस चीज़ का कौन सा प्रोडक्ट करना है. मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरे को इतनी एड्स वगैरह दिख जाती हैं. सो दैट क्वालिटी लीड्स ऑब्वियसली वो आपको एक ट्रिगर करते हैं कि किसको करना है, क्या डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है, काइंड ऑफ दैट थिंग. तो यहाँ पे वी कम इनटू पिक्चर कि क्वालिटी रादर देन ब्रांडिंग, वी जनरेट लीड्स एंड दे आर क्वालिटी लीड्स व्हिच the sponsors get it through our business app, and they can redefine the whole campaign through our business app, जो आज की डेट में हमारा इनोवेशन चल रहा है with the help of AI and all that, कि पूरा का पूरा आप कैंपेन अपना मैनेज कर सकते हो AI से. बैनर्स कब चेंज करनी है, कौन कौन से चेंज करनी है, कितनी लीड्स आ रही हैं, कितने लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग. सो विद द कंसेंट ऑफ अ मेंबर, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, कि मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं जा रहा, कोई वो चीज़ नहीं है. वी आर जस्ट कनेक्टिंग ब्रांड्स विद HNIs एंड ऑल. एंड अगर आपको ये ब्रांड इंटरेस्ट करता है, अगर आपको इसके और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन ओनली यू प्रोवाइड देम विद योर लीड. दैट टू आपका कंसेंट है उसके ऊपर कि यस आई वांट टू नो मोर, देन ओनली वी कनेक्ट दैट थिंग. अदरवाइज किसी को कुछ नहीं, वी डोंट दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जिस दिन ये पैरामीटर हो गया तो हमारा पूरा का पूरा उसका वैल्यू व्हिच वी डिस्कस, वो वैल्यू खत्म हो जाती है, काइंड ऑफ दैट. करेक्ट.
makes कि data makes so much privacy is sense. very important and now it's obviously it's high priority in India also. बाहर US वगैरह में international तो था ही, अब तो इंडिया के अंदर भी people are very specific about their data and all. Totally agree. Yes, Data yes, sharing yes. is very important. Yes, yes, and lot of shit can go through. और with- लॉन्ग टर्म yeah. गेम है कि ऑब्वियसली आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म वो चीज़ नहीं करना चाहिए. Correct, I correct, totally correct. believe. तो आप मेरे को चलिए एक let's to summarize this. What is that one piece of advice you would want to give to our young entrepreneurs in the tech and marketing space who are Okay. probably building an app or who are Okay. probably building a website or a product to provide services in the marketing space? थोड़े लोग होंगे जिन लोग ने ऑलरेडी चालू कर दिया होगा, थोड़े लोग हैं जिन लोग सोच रहे हैं अब चालू करने का. That one piece of advice to think out of the box like you did, to do something new. यार इसको rather than I would rephrase this कि टेक और मार्केटिंग स्पेस तो एक बहुत नीश वगैरह बहुत हो niche जाता है. है. Let's हाँ, yeah, ठीक है. और मेरे पास एक वो था जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था कि आई वाज डीलिंग इनटू दीज थिंग्स. ठीक है, कि मैं ऑब्वियसली लग्जरी ब्रांड्स के साथ भी डील कर रहा था, स्पॉन्सर्स वगैरह से, और मैं HNIs के साथ भी इंट्रैक्शंस वगैरह मेरा थ्रू आउट था. दैट्स द रीज़न मैंने वो चीज़ करा. बट आई वुड लव टू शेयर वन थिंग. I'm no one to share my piece of advice to anyone. your Yeah, experience but as counts. per my experience, I would say कि work on that particular idea which is very close to your heart. एक उसके ऊपर, क्योंकि startup journey is not easy. ये कोई मंथ्स की या ईयर्स की गेम नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है अपने आइडिया के लिए, क्योंकि बहुत फेलियर्स होंगे, बहुत बार गिरोगे, और बहुत बार उठने की जो आपको मोटिवेशन चाहिए वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता है आपका आइडिया, कि आप कितने पैशनेट हो अपने आइडिया के लिए. कि एज देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग ऑफ लेस ब्राउन कि आप गिर सकते हो बट इफ़ यू कैन सी अप यू कैन स्टैंड अप काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो अगर आपका वो आइडिया के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, work on only those things, क्योंकि it's a very hard journey, very hard journey. And distracting also बीच बहुत बीच में. ज़्यादा यार. एक चीज आप कर रहे हो, आपको रेवेन्यू कब आना है, कैश पॉजिटिव कब हो रही हो, कुछ नहीं है. एवरीडे मतलब ठीक है, फैसिनेट बहुत होते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं वगैरह हैं, फेलियर्स का नोबडी रीड इट. ये 8,000 करोड़ का हो गया, ये 15,000 करोड़ का हो गया, विच गिव्स अ किक टू स्टार्ट समथिंग. ठीक है, एवरीडे वी स्टार्ट अप, बट वो जो मोटिवेशन चाहिए टू exceed to that level where we can build something, that requires. and there is a lot of constant advice also, unnecessary advice from 10-20 different people. अरे ये ऐसे करो वैसे करो, तुम तुम्हारे उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो यार. वो मेरे ख्याल से डजंट वर्क दैट वे, क्योंकि आप एक कोई इसमें बुक, कोई गाइड नहीं है कि आप ये रूल्स बुक पढ़ के आप उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट. ट्राइड एंड टेस्ट है हर चीज़ का, आइडिया का ट्राइड एंड टेस्ट है. कोई चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, कोई चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, तो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे ना, वो चीज़ नहीं पता चलेगी, और उसका रिजल्ट भी नहीं आपको पता चल सकता. आप आज मैं आपके पास आया हूँ यार, नमन आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आप मेरे को जतिन ट्राई दिस वे. ठीक है, बट वो वर्क, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है. जब तक मैं वो ट्राई नहीं करूंगा मेरे को पता ही नहीं चलेगा उसका रिजल्ट क्या है. सो एवरीथिंग इज ट्राइड एंड टेस्टेड. सम थिंग्स विल वर्क, समथिंग वोंट वर्क. जो वर्क कर रहा है उसको रखो, देन इनोवेट, ट्राई समथिंग न्यू, ब्रेनस्टॉर्म करते रहो. दैट्स ऑल how it works, I guess. That's my lookout. I totally agree with this, and that should be everyone's mindset also in the entrepreneurship space, at least. Ki try new things, but don't let others decide what you want to do. Your focus should stay where it is. अब कितना भी लेफ्ट राइट आ रहा है, आपको तो सीधा ही जाना है यार. गिरने के लिए तैयार रहो, गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, फिर गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे. वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री. सक्सेस मतलब जो चाहिए, एक बार चाहिए तो गिरने से 10 बार भी गिर गए, 15 बार भी गिर गए, बार तो वो चाहिए, एक बार चाहिए. सही बात. क्रैक जो करना है वो एक बार करना है कोड, तो वो तो कर लेंगे. if you are passionate, if you are working towards your idea. और अगर if you are passionate तो आपको गिरने से प्रॉब्लम भी नहीं होता, होएगी नहीं. आपको गिर रहे तो क्या हो गया, फटाफट खड़े हो. आपका वही माइंडसेट रहता है कि जल्दी खड़े हो, because you are so passionate about what you are doing. If you are not passionate, गिर क्या बोलोगे भाई, लेटते हैं थोड़ी देर. Perseverance is the key. Definitely. On that note, that was such a good episode. That was such a good chat. Like genuinely, मैं अभी तक बहुत ट्रेडिशनल बिजनेसेस से बात करते आ रहा था, बट दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, न्यू एकदम. सो आई एम श्योर कि ऑडियंस भी ये सुन के थोड़ा तो वो होगी कि वाह, थोड़ा क्यूरियस हो जाएगी. लाइक दे विल बी इंट्रिग्ड टू नो मोर, probably. Let's hope. But that was a great chat, and thank you for really sharing your great insights. time, and yeah, for sure. Thank you for sharing your insights. It was really nice. Yes. Thank you very much for your time. Thank you.